کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقربکم منی یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. غور سے سننا پیارے، 5 بار حج کرنے والا کوئی جنتی نہیں ہوگا، گارنٹی نہیں ہے. 10 بار عمرہ کرنے والا جنتی نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. 20 لاکھ کی زکات نکالنے والا جنتی نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. 50 کروڑ کی مساجد بنانے والا جنتی نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. مدارس اور مساجد پر خرچ کرنے والا جنتی ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. جناب والا گارنٹی یہ ہے کہ جب آپ بولیں تو آپ کے بولنے میں اخلاق اللہ کے رسول کا دکھائی دے. جب آپ چلیں تو آپ کے چلنے میں اللہ کے رسول کی سیرت دکھائی دے. آپ جب بولیں تو بولنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز دکھائی دے. او میرے پیارو، میں تم سے آج مخاطب ہوں. میرا مطلب آپ کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے، میرا مطلب آپ کو جھکانا نہیں ہے، میرا مطلب آپ کو ذلیل کرنا نہیں ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار، آپ کھو کہاں گئے ہیں؟ آپ کون سی دہلیز پر چلے گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ہیں. میرے سرکار علیہ السلام جمعے کے دن منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ اکبر. میرے سرکار نے اتنا ارشاد فرمایا ہے. مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک صحابی دوڑ کر کے آئے ہیں. پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اور پیارے اخلاق میں اپنے اخلاق کے اندر طرز پیدا کرو، اپنے اخلاق کے اندر نبی کی سیرت کو پیدا کرتے چلے جانا. اور پیارے تم نے بہت کچھ دیکھا ہے، بڑوں کے چلنے کو، لائف سٹائل کو دیکھا ہے، بڑوں کے پیسہ خرچ کرنے کو دیکھا ہے، بڑوں کی باتوں کو دیکھا ہے. تم نے سب کچھ دیکھا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، اگر نبی کا بولنا دیکھ لیا ہوتا تو آج تباہ نہیں ہوتے. نبی کا چلنا دیکھ لیا ہوتا تو آج برباد نہیں ہوتے. نبی کا پڑھنا دیکھ لیا ہوتا تو آج برباد نہیں ہوتے. نبی کا ملنا جلنا دیکھ لیا ہوتا تو آج برباد نہیں ہوتے. مجھے بتاؤ تو صحیح یار، کہاں نبی ہے اور کہاں صحابی ہے؟ میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد میں کہاں کھڑے ہیں؟ منبر پر. منبر سب سے افضل جگہ ہوتی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح یار، سرکار کے صحابی آتے ہیں، آنے کے بعد میں جب جگہ نہیں ملتی ہے، سرکار کے صحابی وہاں بیٹھے ہیں جہاں پر چپلیں بچھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار نے نگاہ دوڑائی ہے. جب نگاہ دوڑائی تو صحابی چپل پر بیٹھے ہوئے تھے. میرے سرکار کی شان مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس کو مزمل والی چادر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار نے اپنے شان مبارک سے اس چادر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں صحابی کے پاس پھینک دیا. جب صحابی نے پکڑ کر کے یوں کر کے چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو وہ چادر ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. یہ تو وہ چادر ہے جب دھونے کے لیے آپ نے دی تھی اور آگ سے سکھائی گئی تھی، تو اس چادر کو آگ کی تپش نے کوئی بھی گرمی کی شدت نہیں پہنچایا تھا. یا رسول اللہ، یہ تو مزمل والی چادر ہے. اس مزمل والی چادر کو اپنے قدموں کے نیچے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا محمد کسی کو گرانے کے لیے نہیں آیا ہے، محمد تو گرتا ہوا کو بچانے کے لیے آیا ہے. محمد کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد تو مرتے ہوا کو بچانے کے لیے تشریف لائے. واہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. واہ بھائی واہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اخلاق پیدا کرو، اخلاق جناب. آج مالدار ہو تو اپنے لیے، امیر کبیر ہو تو اپنے لیے، نوجوان ہو تو اپنے لیے. سنو کان کھول کر کے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں زکات دینے والا قریبی نہیں ہوگا. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اقربکم منی، تم میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا یوم القیامت. کہاں؟ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا. احاسنکم اخلاقا، جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا. طرز پیدا کیجئے. پردھان ہو تو اپنے لیے،
मंत्री हो तो अपने लिए, मगर मुझे बताओ तो सही यार, हमें हो क्या गया है प्यारे? अगर हमारी मसाजिद हैं तब भी वहां पर राजनीति है, हमारे मदारिस हैं तब भी वहां पर राजनीति है, हमारी महफिल हैं तब भी वहां पर राजनीति है। और जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही यार, मैं पूछना ये चाहता हूं, हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? उन्होंने अपना कदम कैसा बदला है? उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसा कर लिया है? जब अल्लाह अकबर की आवाज आती है, जब अल्लाह अकबर की सदा आती है, तो होना तो ये चाहिए था हम मस्जिद की तरफ चले जाएं, होना तो ये चाहिए था हम इमाम साहब के पीछे चले, होना तो ये चाहिए था कि हम अजान दे, होना तो ये चाहिए था हम मस्जिद के करीब बैठे, होना तो ये चाहिए था मुसल्ले के करीब जाकर के बैठे। मगर प्यारे, कोई नहर पर भाग रहा है, कोई चौराहे पर दौड़ रहा है, कोई गानों में बिजी है, कोई मस्ती में बिजी है, कोई इंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई शादी में जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। मुझे बताओ तो सही, जिस दिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, बताओ बंदे, तुम दुनिया में जो जी करके आए हो, और पता है आपको अल्लाह तबारक व तआला 5 सवाल करेगा। उसमें सबसे पहला सवाल होगा, ओ बंदे बता तो सही, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ओ प्यारे कान खोल करके सुनना, अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये करेगा, ए बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ये जिंदगी कहां गुजार के आया है? अब चौराहे पर गुजारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला तू क्या जवाब देगा? तूने टीवी के सामने गुजारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? तूने गानों में गुजारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? तूने चौराहों पर बैठ करके गुजारी होगी, मस्ती करके गुजारी होगी, चंद लोगों को बिठाल करके तूने गप्पे शप्पे लड़ाई होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर, क्या ही अच्छा होता एक बाप का किरदार ये होता, अपने बेटे को अदब सिखाए, अपने बेटे को बताए, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जन्नत चले जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब बेटा ये होता है, जब अजान हो जाए ना तो पहला कदम तेरा चौराहे की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहला कदम तेरा टीवी की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहला कदम तेरा गप्पे शप्पों की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहला कदम तेरा कहीं और नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना चाहिए। और जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाए, और बापो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, अपने बेटों को अदब सिखाओ, और ऐसा अदब सिखाओ, बताओ रसूल के बारे में, रसूलुल्लाह हमारे लिए रातों रात रोया करते थे, रसूलुल्लाह हमारे लिए कभी गारे हिरा में रो रहे हैं। ओ प्यारे, दर्द समझते हो दीन का? दीन समझते हो किसे कहते हैं? इस्लाम समझते हो किसे कहते हैं? 12 रबीउल अव्वल आया, आने के बाद में कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, हक अदा कर दिया, नारा लगाया, हक अदा कर दिया, नारे रिसालत लगाया, हक अदा कर दिया, हमने जितने नारे लगाए, सरकार की आमद मरहबा, हक अदा कर दिया, फजर गायब हो रही है, हक अदा कर दिया है, ज़ोहर गायब हो रही है, हक अदा कर दिया है, असर गायब हो रही है, हक अदा कर दिया है, मगरिब गायब हो रही है, हक अदा कर दिया है, इशा गायब हो रही है, हक अदा कर दिया है। रसूलुल्लाह के नाम पर मिलाद हम नहीं पढ़ते हैं, मिलाद सुनना हम नहीं चाहते हैं, रसूलुल्लाह पर दूध हम नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद में हम कहते हैं हम तो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े आशिक हैं, हम तो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े चाहने वाले हैं। और मुझे बताओ तो सही यार, कैसे तुमने अपनी आखिरत पर बात की है, कैसे तुमने अपने आप को डुबोया है, कैसे तुमने अपने आप को हलाकत और बर्बादी में डाला है? मुझे बताओ तो सही, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया था, इसलिए पैदा नहीं किया था कि जाओ और जाकर के नारे लगा करके आ जाना, जाओ और जाकर के गप्पे शप्पे मार के आ जाना। और बताओ तो सही यार, तुम तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो, तुम तो गौसे आदम के मानने वाले हो, तुम तो मसलक के आला हज़रत कदम भरने वाले हो। मुझे बताओ तो सही, एक बंदा भी मजमे में खड़ा होकर के मुझे बताए गौसे आदम ने कब नमाज छोड़ी है? मुझे बताए तो सही, इमाम हुसैन ने तो उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी थी जबकि 72 के सर कट रहे थे, सूरज सवा नेज़े पर था, फिर नीचे से जमीन जल रही थी, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। और बंदे, मैं ये जरूर
जरूर कहता हूं तो इमाम हुसैन तो नहीं बन सकता है, मगर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, हाजिर होने के बाद में अर्ज कर मौला तेरे महबूब के नवासे ने करबला में सजदा किया था और हम अपने महल्ले की मस्जिद में सजदा करने के बाद तेरी इबादत का हक अदा कर रहे हैं। हाँ, नफरत न फैलाओ, मुझे बताओ तो सही, एक आदमी अगर अदब सिखाए तो उससे तनफ्फुर कैसा, एक आदमी ताजीम सिखाए उससे तनफ्फुर कैसा, एक आदमी तौकीर सिखाए उससे तनफ्फुर कैसा। मुझे बताओ तो सही यार, तुम प्रधानों की कुर्सी को 2-2 घंटे तोड़ने के लिए तैयार हो, मस्जिद में 1 मिनट लेट हो जाए तो फिर साहिब यूं करके झांका करते हैं, आज तो 1 मिनट लेट हो गया। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं प्यारे, मगर कान खोल करके सुनना, हमने अपने रब का बंदा हक होने का कितना हक अदा किया है। ओ प्यारे कान खोल करके सुनना, हमने अपने अखलाक के अंदर सीरत रसूल अकरम नहीं अपनाया है, हमने रसूलुल्लाह की शरीयत को, रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत को नहीं अपनाया है। मुझे बताओ तो सही यार, आज तो आलिम बताए नमाज के बारे में तो फिर हम ये कह दिया करते हैं कितने आए कितने चले गए। आज बताए आलिम महफिल मीलाद की बरकत ये है, उसका अदब ये है, तो फिर कह दिया करते हैं कितने आए कितने चले गए। ओ बंदे तू आज कहता है रब तबारक व तआला उस वक्त उससे पूछेगा, और क्या समझते हो आज तुम्हारी ज़बान चल रही है, जो कह करके चाहोगे वो कह करके चले जाओगे। आज तुम्हारे पास जवानी है, जितना चाहोगे बोलोगे। हाँ तुम आज बोल सकते हो, हाँ तुम आज जो चाहो कह सकते हो, जिस तरह से चाहे जबान लड़ा सकते हो, जिस तरह से चाहे बदतमीजी कर सकते हो, जिस तरह से चाहे रसूलुल्लाह के दीन को हक़ारत की नजर से देख सकते हो, जिस तरह से चाह सकते, जिस तरह से चाहो तुम आलिम दीन की तहकीर और तज़लील कर सकते हो। मगर बताओ तो सही, एक दिन ऐसा भी होगा जब तुम चारपाई पर पड़े होगे, उस वक्त में तुम्हारा कोई परेशान हाल ना होगा। तुम्हारी कंडीशन तो ये थी कि जब तुम इशारा करते थे 4 लड़के तुम्हारे इशारे पर आ जाते। तुम्हारी कंडीशन तो ये थी 5-5 लोग तुम्हें घेर करके बैठते थे। तुम्हारी कंडीशन तो ऐसी थी जब तुम बातें किया करते थे पूरा मोहल्ला बैठ करके तुम्हारी बातें सुना करता था। मगर जिस वक्त तुम अपनी चारपाई पर पड़े होगे, उस वक्त का आलम यह होगा साहिब तुम्हें देखने की तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे जिस्म पर कोई मक्खी बैठेगी उसको भी नहीं उड़ा सकते हो। तुम्हारा बाप भी 10 दिन तक मक्खियां उड़ा करके थक जाएगा, तुम्हारी माँ भी 1 महीना तक तुम्हारे जिस्म की मक्खियां उड़ा करके थक जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा तुम हॉस्पिटल में पड़े होगे, पड़े रहने के बाद रिश्तेदार केले लेकर के आएंगे, रिश्तेदार सेब लेकर के आएंगे, रिश्तेदार तुम्हारे जूस लेकर के आएंगे, रिश्तेदार तुम्हारे आम लेकर के आएंगे। मुझे बताओ तो सही, मगर केले तुम्हारे काम नहीं आएंगे, सेब तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जूस तुम्हारे काम नहीं आएगा। पैसा रख करके लोग चले जाएंगे, तुम यूं करके देखते रहोगे। ना तो वो तुम्हारा हाल तुमसे पूछ सकता है, ना तुम उसे अपना हाल बता सकते हो, ना तो तुम उससे कह सकते हो मुझे ये खाने का दिल चाहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब भी आया करो और जमीन पर जब चला करो अकड़ करके मत चला करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर इतराते हुए मत चलना। प्रधान अपने लिए होगे, मंत्री अपने लिए होगे, सांसद अपने लिए होगे, कैबिनेट मंत्री अपने लिए होगे। जितने तुम्हारे मरातिब हैं, जितने तुम्हारे मनासिब हैं वो तुम्हारे लिए है। यहाँ पर बड़े बड़े आए हैं बर्बाद हो गए। अगर देखना चाहते हो आओ देखो, फिरौन पूरी दुनिया पर बादशाहत करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ क्या किया है, रहती दुनिया तक फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने इबरतनाक अंजाम बना करके सारी दुनिया के लिए रख दिया है। ए लोगों करना मत, इतराना मत, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना और झुक करके जाना। जब भी लोगों से बात करना तो झुक करके करना। और प्यारो जब ये अखलाक हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों पर और तुम्हारे लिए लोगों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। और ऐसी मोहब्बत करेंगे लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। नारे